Hello, dear students. Welcome to day 28 of our daily 5 study question series. आज हम हेरिडिटी चैप्टर के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी वे में, वही डेली 5 क्वेश्चंस करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 1 इज all the variation in a species do not have equal chance of survival. Why? जितने भी वेरिएशंस होते हैं सबके जो है इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऑल दी वेरिएशंस डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल एज सम वेरिएशंस माइट नॉट बी बेनिफिशियल। क्योंकि कुछ वेरिएशन जो है वेरिएशन हेल्पफुल नहीं होते, बेनिफिशियल नहीं होते एंड वुड अल्टीमेटली बी एलिमिनेटेड। बी पार्ट, वाई वेरिएशंस आर मोर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में वेरिएशंस ज्यादा क्यों होते हैं? Because human being reproduce sexually and variations are more in sexually reproducing organism. हमें पता है बेटा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और करेक्टर्स क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। और दूसरा फिनोमिना कौन सा होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशन, जिससे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस ज्यादा आते हैं। Question number 2. Sex determination in humans happens through sex chromosome. Along with other parameters, such as often help in forensic studies, in crime investigation, and or in identification of accidents and natural calamities. In order to determine whether an accident victim is male or female, which cells can be used and why? बेटा हम बॉडी की कोई सी भी सेल यूज कर सकते हैं क्योंकि सभी सेल्स में सेक्स क्रोमोसोम होता है 23rd पेयर। मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। क्वेश्चन नंबर 3, we cannot pass on to our progeny the experience and qualification earned during our lifetime. Justify the statement giving reason and example. Experience of life and qualifications we earn do not make any change in the genes of the individual. क्योंकि उससे हमारे जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आते। Changes made in the genes are only passed on from one generation to next generation. जो जीन्स में करेक्टर्स होते हैं वही वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। और ये these qualities are acquired by an individual in his life and are called acquired traits which cannot be passed on to future progeny. For example, if a person reads a book on birds, the knowledge he earns by reading the book does not make any change in his genes. Hence, this knowledge will not get automatically transmitted to the next generation. Question number 4. A pea plant with blue color flower denoted by capital B is crossbreed with a pea plant with white flower denoted by small w small w. What is expected color of the flower in F1 प्रोजेनी? बेटा F1 प्रोजेनी में क्या होगा, देखिए हमने क्रॉस करवाया कैपिटल बी और स्मॉल डब्ल्यू को, तो सारे कैसे आ रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू। बेटा कैपिटल बी डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल डब्ल्यू रिसेसिव है, यानी ब्लू कलर हमारा डोमिनेंट है और व्हाइट कलर रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे दिखाई देंगे हमें, ब्लू कलर के। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन व्हेन द फ्लावर ऑफ F1 प्लांट्स वर सेल्फ? क्या होगा बेटा, हमने वही क्रॉस करवा दिया है, ये क्रॉस करवा दिया हमने, तो देखा क्या है, ये तीन हमारे कैसे हैं, ब्लू और एक है व्हाइट, यानी F1 प्रोजेनी आर सेल्फ कराएंगे तो हम 25% ऑफ द फ्लावर्स कैसे होंगे बेटा, हमारे व्हाइट होंगे। State the expected ratio of the genotype BB and BW. बेटा BB and BW का रेशियो क्या है, BB कितना है, एक है 1 और BW कितने हैं, 2, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। And today's last question, how do Mendel experiments show that traits are inherited independently? बेटा मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसके हम F2 जनरेशन में जाएंगे। Mendel performed an experiment in which he took two different traits like tall and dwarf plants and round and wrinkled seed. In second यानी F2 generation में some plants were tall and round seeds and some are dwarf and wrinkled seed. There would also be dwarf plants with round seed and tall or short traits with round or wrinkled seeds. Traits are independently inherited. तो बेटा ये था हमारे आज के 28 डे, यानी हमने आज 28 डे भी कंप्लीट कर दिया। कल मिलते हैं हेरिडिटी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।